Good morning everyone. My name is Marichalan, a student of class 7th A. Today I am here to express my views and thoughts on the National Girl Child Day. The National Girl Child Day is celebrated in India on 24th of January every year. The Ministry of Women and Child Development initiated this program in 2008. The main objectives behind the celebration is to highlight the inequality faced by the girls in our country, create awareness among the public about the rights of girl child, and to emphasize on girls' education, health, and nutrition. The theme for National Girl Child Day celebration 2022 is to generate awareness on the issue of declining child sex ratio. As per a report published by Ministry of Health and Family Welfare, published on dated 17 December 2021, the sex ratio in some states like Goa, Himachal Pradesh, Telangana and Maharashtra has declined over the last 5 years. However, with the implementation of Beti Bachao Beti Padhao, significant improvement in the child sex ratio has been recorded in states like Tripura, West Bengal, Meghalaya and Mizoram. On this day, public awareness must be created to make people understand the importance of girl child. A sincere and collective effort can reduce the gap and help our daughters realize their potential and achieve their life goals. India takes pride in achievements of our girls who have made India proud with their national and international achievements. Thus, on this special occasion, I appeal everyone in our country to promote education of girls and create a conducive and healthy environment for them. At last, I would like to say to all the girls of our country a happy National Girl Child Day. Thank you. My warm greetings to everyone. This is Vanchika Batra from class 9B. As we all know, every year 24 January is observed as National Girl Child Day. This occasion marks the importance of girl child and attempt at identifying their power and potential. Its significance is to promote awareness of issues faced by our daughters in India such as education, nutrition, legal rights, medical care, protection, and honor. Being a daughter of this motherland, I am as much proud of myself as any powerful woman in this universe. As we celebrating the National Girl Child Day, we recognize the importance and strength that she portrays and expresses. This celebration is just isn't about fundraising and raising awareness. It's about the collection of data to learn as much as we can. I am a girl and I am proud of myself. We all are beautiful, cool, soft hearted, and are the masterpiece of the world's greatest sculptor ever, God. Just let's admire a thought, the fact that the world is run by a man, but more by a woman. Just remember what a man can do, a woman can do it better. Thank you and have a marvelous वेदना नहीं वरदान होती है, दूर नहीं जीवन का सार होती हैं बेटियां। सबसे पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भव्या रंजन कक्षा 9वीं ब की छात्रा आज आपके समक्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमारी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा जो संदेश दिया गया ओलंपिक्स में, वो पहुंचाना चाहती हूं हमारे देश की 65 करोड़ बेटियों को और महिलाओं को। हमारे देश में ये मानसिकता है कि लड़कियों को फेयर एंड लवली की नज़र दृष्टिकोण से देखा जाता है। क्या ये सही है? क्या हमारे समाज में सब कुछ फेयर एंड लवली चल रहा है? बिल्कुल नहीं। खैर,
मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, ये किस्सा अधूरा रह जाएगा। किस किस के नाम लूँ? सांसें कम हैं और लोग ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको महिला हॉकी खिलाड़ी टीम्स से जो उन्होंने संदेश दिया है हमारे देश की बेटियों को, वो पहुंचाना चाहती हूँ। गर्मी से उलझती, भले ही वो कांस्य पदक के लिए हार गई हो, लेकिन उन्होंने हमारे देश की 65 करोड़ महिलाओं व बेटियों को एक नया रास्ता दिया है, एक नया मुकाम पाने की एक उम्मीद दी है। वो संदेश पता है क्या है? वो संदेश यह है कि सफलता पाने के लिए बड़े बड़े मकान नहीं, एक मुकाम चाहिए, एक इरादा चाहिए। भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही हार गई, लेकिन रसोई से लेके मैदान तक का सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने केवल वहाँ पे मैच नहीं खेला, बल्कि उस मैच खेलने से पहले उन्होंने हमारे देश से, हमारे समाज से, अपने परिवार से एक मैच खेला जिसमें वो जीती और हमारे देश को 135 करोड़ भारतीयों को प्रेरित किया। और वो संदेश अगर बाकियों तक पहुंच जाए, उसका मर्म क्या है, अगर वो पहुंच जाए तो मेरा उद्देश्य और उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर से आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Good morning. I am Arunima Singh of 10th C of Kendra Vidyalaya Barkuhi, and I am here today to share my thoughts with you about National Girl Child Day. National Girl Child Day is celebrated every year in our country on 24th of January, and it was first initiated in 2008 by the Ministry of Women and Child Development and the Government of India to promote awareness about the rights of the girl children and their education, nutrition, and health. In a world today where women and men are contributing equally to the society in every field, be it sports, politics, technology, science, or arts, or anything else, there are still parts in our world where girl children are treated unequally and they are discriminated. Their potential is not utilized. One of these neglected girl child could have been the next Marie Curie or the next Rosalind Franklin. They could have contributed to the success of our society. Imagine how superior the world would have been if they were given the opportunity that they deserve and could have contributed to the development of the society. We all who are given these opportunities therefore should not tolerate that there are still people in our world who are not given these opportunities. We all must fight together to fight these inequality and discrimination faced by the girl children. आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस पावन अवसर पर समस्त बालिकाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं समस्त बालिकाओं को उनके सम्मान में अपनी भावना व्यक्त करती हूँ। जिस बेटी से है घर की शान, जिस बेटी से है घर की शान, क्यों ना हो उसका सम्मान, क्यों ना हो उसका सम्मान। राष्ट्रीय बालिका दिवस का शुभारंभ 24 जनवरी 2008 को किया गया था। यह दिवस हमें बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति जागरूक करता है। लड़कियां हमारे समाज में सकारात्मकता का सोच और मानवता का बहुत ही बड़ा हिस्सा हैं। लड़कियों के एक होने मात्र से वातावरण स्वतः ही शिष्टता, सभ्यता और सुख से परिपूर्ण हो जाता है। समाज का यह अभिन्न हिस्सा निश्चय ही सशक्त होना चाहिए। बेटियों को शिक्षित करना उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में निश्चय ही एक कारगर कदम सिद्ध होगा, क्योंकि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। बच्चों को शिक्षित करने का उद्देश्य
बेटियों को शिक्षित करने का उद्देश्य दूसरों के लिए नहीं, बल्कि उनके नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने जा रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सभी बालिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने की शुरुआत सन 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी, जिसका मकसद महिलाओं में भेदभाव के प्रति एक अभियान चलाना था और लोगों को बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। हालांकि मौजूदा समय में लोगों की सोच और हालात अब बदल चुके हैं। अब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। तो महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती, इसी पर चंद लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला। अब तो वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, अब तो वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं। हर क्षेत्र शक्तियां जमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्तियां जमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके। अब तो शमशान में भी जाने लगी बेटियां, अब तो शमशान में भी जाने लगी बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज। नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब आज तक मिले नहीं हैं और शायद कभी मिल भी नहीं पाएंगे। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलार नंदी नंदन नचाता कौन, यशोदा दुलार नंदी नंदन नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तपस्यार होती ना तो, अनुसुईया जैसी बेटी तपस्यार होती ना तो। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को नचाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को नचाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात मुझको आज, जनता जनार्दन बताए एक बात मुझको आज। सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब 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 कुछ होता मगर एक बात सोच लेना, सब 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 कुछ होता मगर एक बात सोच लेना। अगर मैं न होती तो ये कविता सुनाता कौन, अगर मैं न होती तो ये कविता सुनाता कौन। धन्यवाद।